Hello my dear students, and in this video we will discuss about nutrition and basically nutrition in animals की बात करेंगे हम. Class, first of all ये पढ़ने से पहले we should know that why we need food. Basically we need food for obtaining energy, for the growth of our body and for the maintenance of our body. इसलिए हम food इनटेक करते हैं. ओके, सो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड, यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सेट्रा, एंड देन एक्सक्रीटिंग द वेस्ट मटीरियल फ्रॉम द बॉडी. द मटीरियल्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन, जिन मटीरियल से हमें न्यूट्रिशन बेसिकली मिलता है उनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. इट कैन बी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन एक्सेट्रा. ओके, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे. दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकेंड इज द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटो की बात अगर हम करें, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात, सो ऑटो मीन्स सेल्फ. दोज ऑर्गेनिज्म विच आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, they are called as autotrophs, and this mode is called autotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition means those organisms which are not able to prepare their own food and they are dependent on other organisms for their food requirement. They are called as heterotrophs basically, and this mode is called heterotrophic nutrition. It can be of three types: holozoic, saprophytic and parasitic nutrition. So we will discuss these three one by one. सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं. सबसे पहले सेप्रोफाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म से फूड गेन करते हैं. बेसिकली सेप्रोफाइट्स feed on dead and decayed organism for energy. They are an important part of the ecosystem as they help us to keep our environment clean and recycle nutrient back. ना ही सिर्फ ये न्यूट्रिएंट गेन कर रहे हैं डेड डीकिंग ऑर्गेनिज्म से, इवन ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का भी एक रोल प्ले करते हैं. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल फंजाई and bacteria, some bacteria. So you can see the picture of fungus here. So they are the saprotrophs and this mode is called saprophytic nutrition. Other one is parasitic nutrition. Organism that feed in or on the other organism and acquire food at the expense of its host are called parasites. Parasites वो organism होते हैं जो host से food obtain करते हैं, और in some cases they can also harm the host. Okay, या तो वो host के अंदर रहकर food obtain करेंगे या ऊपर से भी obtain कर सकते हैं. Okay, like you can see Cuscuta plant here and tapeworm. This one Cuscuta plant is an ectoparasite and tapeworm which live inside the body is an example of endoparasite here. Okay, holozoic nutrition की बात करते हैं. Holozoic nutrition involves the ingestion and internal processing of solid and liquid food in an organism. This involves the steps of ingestion, digestion, absorption, assimilation and excretion. इस न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स होते हैं. बेसिकली फूड का इंजेक्शन किया जाता है, उसको इंटरनल प्रोसेस किया जाता है बाय ऑल दीज 5 प्रोसेसेस, एंड देन फूड को डाइजेस्ट किया जाएगा. बेसिकली ingestion is the intake of food which is broken into simpler organic matter by the process called digestion. After extraction of useful components, the unwanted food will be excreted out. Okay, जो भी फूड ज़रूरी था बॉडी के लिए उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको एक्सक्रीट किया जाएगा. ओके, सो होलोजोइक न्यूट्रिशन के एग्जांपल की अभी हम बात करने वाले हैं. उससे पहले हम डिस्कस करते हैं एनिमल्स के अंदर टाइप्स क्या क्या होते हैं, कौन से मोड से वो फूड ऑब्टेन कर सकते हैं. एनिमल्स आर हेटरोट्रोप्स एंड हेंस दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड. दे कैन बी हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर. हर्बीवोर मीन्स वो एनिमल्स जो ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स को ईट करते हैं. बेसिकली कार्निवोर्स ईट ओनली एनिमल और फ्लैश. ओमनीवोर्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स. ओके, you can see here in this picture some examples of herbivore, omnivores and carnivores. Herbivores I have explained you, जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स को लेंगे लाइक गोट, काउ एंड डियर एक्सेट्रा. कार्निवोर्स बेसिकली फ्लैश लेते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स लेते हैं, बेसिकली लॉयन, टाइगर, लिजर्ड. ओमनीवोर्स बोथ प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, बोथ प्लांट एंड एनिमल. ओके, मैन, डॉग आर द एग्जाम्पल्स. इसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि जो
आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स हैं बेसिकली. फर्स्ट वन इज योर इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. ओके, इसमें क्या होता है इंजेशन में, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. फूड को बॉडी के अंदर लेना ही इंजेशन कहलाता है. सेकेंड स्टेप डाइजेशन में क्या होगा, in this the food containing large insoluble molecules is broken down into small water soluble molecule by this process of digestion. Okay, इसमें लार्ज मॉलिक्यूल जो हमने फूड का इंटेक किया है उसको विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक किया जाएगा. एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, इन दिस इज द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. बेसिकली क्या होगा, जो फूड अब डाइजेस्ट हो चुका है उसको ब्लड में एब्जॉर्प्शन होगी उस फूड की. इस थर्ड स्टेप को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. एसिमिलेशन में क्या होगा, द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन बाय द बॉडी सेल्स एंड यूज फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर. अब जो फूड एब्जॉर्ब हो चुका है थर्ड स्टेप में उसको बॉडी यूज़ करेगी एनर्जी पर्पज़ के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए. इसे हम बोलते हैं एसिमिलेशन. थर्ड वन इज़ योर इजेशन. इसमें क्या होगा, जो भी फूड अनडाइजेस्टेड रह गया था इट विल बी रिमूव्ड बाय द बॉडी विद दिस प्रोसेस ऑफ इजेशन. ओके, you can see here ingestion, first step ingestion, digestion, absorption and egestion. Okay, assimilation को यहाँ पर represent नहीं किया गया है because assimilation occurs in all body cells. So assimilation basically क्या होता है, जो भी food absorb हो चुका है उसको body का हर cell use करेगा अपनी requirement के according, energy के लिए, growth के लिए, repair के लिए basically. And न्यूट्रिशन अमीबा की बात करेंगे. इसमें हम सिंपल प्रोसेस जो ये यूज़ करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल अमीबा और पैरामीशियम दोनों का ही हम एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं. अमीबा ईट्स टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स एज फूड विच फ्लोट इन वाटर इन विच इट लिव्स. अमीबा के एनवायरनमेंट में जो भी स्मॉलर टाइनी प्लांट्स एनिमल होते हैं वो उसी को फीड करता है, उसी को यूज़ करेगा एज फूड. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक. ओके, बेसिकली इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक है. इट मीन्स वो 5 स्टेप जो हम डिस्कस कर चुके हैं ये उसको ही फॉलो करता है. द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जिससे अमीबा फूड इनटेक कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस. ओके, स्टेप्स की बात कर लेते हैं इसमें. इंजेशन, सेम प्रोसेस, फूड को इनटेक किया जा रहा है. ओके, एक टेम्पररी फूड वैक्यूल बनता है इसमें. ओके, विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया यू कैन सी हियर दीज स्ट्रक्चर्स. ओके, दीज आर कॉल्ड सीडोपोडियाज. और इसके बाद डाइजेशन होगा. जो फूड इंजेस्ट किया गया उसको बॉडी में एंजाइम की हेल्प से उसको ब्रेक किया जाएगा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में. ओके, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, बॉडी फूड को एब्जॉर्ब करेगी थर्ड स्टेप में. एंड देन जो एब्जॉर्ब फूड है उसको बॉडी यूज़ करेगी फॉर वेरियस पर्पज, जैसे मैंने आपको पहले बताया था अभी. इजेशन में क्या होगा, जो भी फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ, जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी इजेक्ट करेगी बॉडी से, जैसे कि मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया है अभी इसके बारे में. ओके, यू कैन सी हेयर दीज स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे अमीबा फूड पार्टिकल को इनटेक कर रहा है बाय फॉर्मिंग दिस structure pseudopodias. You can see here these are the pseudo means false, podia means food. false food form करता है अमीबा, जहाँ भी फूड पार्टिकल होगा उस तरफ ग्रोथ हो जाएगी इसकी बॉडी पार्ट की. एंड दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय द अमीबा. और ये फूड को ट्रैप कर लेगा और फूड वैक्यूल फॉर्म कर लेगा इधर. और फिर उसके बाद क्या होगा, बॉडी के अंदर जाने के बाद इस फूड वैक्यूल में एंजाइम्स एंटर करेंगे और वो उसे फूड पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ने में हेल्प करेंगे. बेसिकली इट विल हेल्प टू ब्रेक द लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. और उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको इससे बॉडी से बाहर निकाला जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन. ओके, यू कैन ऑल्सो सी इन दिस पिक्चर फर्स्ट वन आई हैव एक्सप्लेन हियर how it forms pseudopodia. Then food vacuole will form and then enzyme will work on it to digest the food particles, and then amoeba use this food, absorb food in the fourth step of assimilation, and then इसका egestion होगा. जो भी food undigested है वो body से बाहर thrown out किया जाएगा. Okay, now पैरामीशियम की बात करते हैं. सेम प्रोसेस है पैरामीशियम में. और डिफरेंस क्या है अमीबा में, ये कि
in paramecium there is no pseudopodia, there is the presence of cilia. I will show you in the diagram. And in amoeba there is the formation of pseudopodia, false foot. बाकी सब प्रोसेसेस सेम होते हैं इसमें भी. You can see here, this is the structure of diagram of paramecium. Cilia will help to trap the food and to form a food vacuole. And बाकी 4 process, digestion, absorption, assimilation and egestion will be similar to that of amoeba. Okay. अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. लाइक हम अपनी बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस किया पैरामीशियम अमीबा, उससे काफ़ी डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि दे आर जस्ट अ स्मॉलर और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, बट वी आर मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म एंड अवर बॉडी हैव सो मैनी ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड. ओके, सो द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि इसमें रोल प्ले करते हैं वो होते हैं आपके माउथ, esophagus, stomach, small intestine and large intestine. These are the organs which play a major role in the digestion of food. इसके अलावा salivary gland, liver, pancreas, they also play a special role in the digestion of food in human beings, animals. Okay, ingestion same process, food का intake कर रहे हैं, mouth के अंदर जो process होता है शुरू हो जाता है यहाँ पर with the help of salivary glands. Okay, the food is put into the mouth with the help of hands. You can see here salivary glands, the structure of mouth, esophagus, stomach, gallbladder, pancreas, small intestine, large intestine, appendix. These all parts play special role in the digestion of food in human beings or animals. Okay. Second step में क्या होगा? The digestion of food begins in the mouth itself. Digestion जो होती है first step में mouth में start हो जाती है, but only the digestion of carbohydrates begins in the mouth. Okay. हाँ, और हमारे माउथ जिसको हम बकल कैविटी भी बोलते हैं, वहाँ पर बेसिकली टीथ होते हैं, टंग होती है, एंड जो हेल्प करते हैं आपके फूड को मैस्टिकेट करने में. यहाँ पे हम बोल सकते हैं फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन द माउथ. ओके, और इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है माउथ में, जो कि आपके लिए फूड को डाइजेस्ट करने के लिए सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है विच एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च को कन्वर्ट करेगा माल्टोज में. ओके, बेसिकली केमिकल डाइजेशन बोलेंगे इसको. मैस्टिकेशन जो प्रोसेस होता है, मतलब आपकी टीथ और आपका जो माउथ है वो पूरा जो आपका फूड है उसको च्यू करने में हेल्प करता है बेसिकली. और जो फूड हम माउथ में मैस्टिकेट करते हैं उसको हम बोलस बोलते हैं. इट इज़ कॉल्ड एज बोलस. ओके, आपकी जो टंग होती है, आवर टंग ऑल्सो हेल्प इन द मिक्सिंग ऑफ द सलाइवा विद द फूड. ओके, उसके बाद जो यहाँ पे जो डाइजेशन हुआ है माउथ के अंदर, दैट इज़ ओनली द इनकम्प्लीट डाइजेशन. बाकी इसका डाइजेशन फर्दर होगा इंटेस्टाइन और स्टमक में. ओके, नाउ ईसोफेगस में अब माउथ से जो फूड होगा वो ईसोफेगस की हेल्प से स्टमक तक पहुँचाया जाएगा. और यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की मूवमेंट स्टार्ट होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इन द माउथ इज swallowed by the tongue and goes down the food pipe called esophagus, जिसको हम esophagus बोलते हैं फूड पाइप को. When the slightly digested food enters the food pipe, the wall of food pipe start contraction and expansion movement called as peristaltic movement. जब फूड एंटर करता है माउथ से esophagus में, मतलब फूड पाइप में, तो उसकी जो वॉल होती है, फूड पाइप की जो वॉल होगी बेसिकली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है. इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. और इसी मूवमेंट की हेल्प से क्या होता है, फूड जो होता है आगे की तरफ मूव करता है. ओके, माउथ से इसोफेगस से स्टमक तक पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. बेसिकली दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द फूड पाइप पुशेस द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इनटू द स्टमक. यही मूवमेंट हेल्प करती है फूड को स्टमक तक पहुंचने के लिए बेसिकली. ओके, इसके बाद स्टमक जो होता है बेसिकली इट इज़ अ जे शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन. स्टमक वॉल्स के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस बनते हैं अलॉन्ग विथ म्यूकस एंड HCl. ओके, जो रोल होता है म्यूकस का यहाँ पर, बेसिकली म्यूकस प्रिवेंट करती है HCl के इफेक्ट से आपका जो स्टमक का इंटरनल लाइनिंग होती है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, हार्म ना पहुँचे उसे. सो म्यूकस प्रिवेंट द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ HCl. बेसिकली गैस्ट्रिक जूसेस हेल्प करते हैं आपके फूड को डाइजेस्ट करने में. जो माउथ में डाइजेस्ट नहीं हो पाए थे कम्प्लीटली, वो यहाँ पे आके डाइजेस्ट होंगे अगेन विद द हेल्प ऑफ दीज गैस्ट्रिक जूसेस. ओके,
The hydrochloric acid creates an acidic medium which facilitates the action of the enzyme pepsin, जो कि आपको हेल्प करता है प्रोटीन डाइजेशन के लिए. जो आपका एचसीएल एसिड बनता है ना यहाँ पे, एक तो उसका रोल है बैक्टीरिया किल करने के लिए और दूसरा वो रोल प्ले करता है एंजाइम्स को एक्टिव करने के लिए, जो एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, लाइक पैप्सिनोजन को कन्वर्ट करेगा पैप्सिन में. ओके तो HCl का एक अपना रोल है. एक तो वो मीडियम क्रिएट कर रहा है एसिडिक मीडियम फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, और इट हेल्प्स टू किल द बैक्टीरिया एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू एक्टिवेट एंजाइम. ओके और आपकी जो म्यूकस होती है वो है आपके स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ HCl एसिड. ओके द पार्शली डाइजेस्टेड फूड देन गोज फ्रॉम द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब फूड जो है स्टमक से कहाँ पहुँचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. Okay, from the stomach, the partially digested food enters the small intestine. Small intestine is the largest part. कम से कम 6.5 मीटर लंबी होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन. सबसे बड़ा जो पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का पूरा होता है वो होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ वेरी नैरो एंड अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल इन आवर बैली. बहुत ही नैरो ट्यूब होती है और ये बहुत कॉइल फॉर्म में हमारे बैली में प्रेजेंट होती है. ओके द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बींग इज द साइट ऑफ कंप्लीट. और हम आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है यहाँ पे आने के बाद फूड का जो है कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा. ओके और इसको 2 ग्लैंड्स हेल्प करते हैं डाइजेस्ट करने के लिए फूड को यहाँ पर बेसिकली. वन इज़ लिवर, अदर वन इज़ द पैनक्रियाज. ओके सो पैनक्रियाज और लिवर का सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचता है और जो भी फूड अभी रह गया है डाइजेस्ट होने के लिए उसका यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होगा. ओके लिवर सिक्रीट करता है बाइल जो कि एक्ट करता है फैट पे. फैट का एमल्सिफिकेशन होता है, फैट को ब्रेक करता है स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में बेसिकली. ओके एंड थर्ड स्टेप जो है आपका वो है एब्जॉर्प्शन है. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद क्या हुआ है, फूड डाइजेस्ट हो चुका है कम्प्लीटली. अब यहाँ पे होगा इसका एब्जॉर्प्शन बेसिकली. सो द इनर सर्फेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई. जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल वॉल होती है उसमें ना बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं लाइक दिस. ओके इसका सरफेस एरिया बहुत एनलार्ज होता है और ये ईजिली फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं. एंड द डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब थ्रू द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन और वो वहाँ से एब्जॉर्ब होकर ब्लड तक पहुँचेगा. ओके इसके बाद एसिमिलेशन होगा. सेम वही प्रोसेस है. जो फूड एब्जॉर्ब हो चुका है उसको बॉडी यूज़ करेगी एनर्जी पर्पस के लिए, बिल्डिंग के लिए, न्यू टिश्यूज़ को फॉर्म करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए ओल्ड टिश्यूज़ की. क्योंकि वो फूड जो एब्जॉर्ब हो चुका है उसका एसिमिलेशन ज़रूरी है तो बॉडी उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ करेगी, यूटिलाइज करेगी. ओके एंड लास्ट प्रोसेस इज इजेशन. अब जो फूड अनएब्जॉर्ब हो गया था उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाएगा. दैट फूड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू लार्ज इंटेस्टाइन वेयर मोर विल आई एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटीरियल. अगर इस फूड में अमाउंट ऑफ वाटर होगा तो उसको बॉडी वापस अगेन एब्जॉर्ब कर लेगी एंड द रेस्ट ऑफ द मटीरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी via the anus. और बाकी सारा मटेरियल रिमूव कर दिया जाएगा थ्रू एनस. द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटीरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्पिंक्टर. इसका जो एग्जिट होता है उसको रेगुलेट करता है हमारा एनल स्पिंक्टर. सो क्लास दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. बेसिकली हमने यहाँ पे ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस नहीं किया है अभी. सो इन माई नेक्स्ट वीडियो I will discuss about the types of glands, basically salivary gland, liver, pancreas, gastric glands in separate video. So wait for that.